This animation here is will help you understand the question in a better way, visualization form. So what we are seeing is a circle is made up of small elements, and these small elements are shown by the small cylinders. And what else we see is that the white sphere for which we have to find electric field is z distance from the origin of the circular loop, and the circular loop is having a uniform line charge lambda, and this whole figure is showing different things. So what are these? So what we see is that the element which we are taking is ds, and that element ds is having a position vector r from the point where we have to find electric field, that is that white sphere. And the next thing which we are seeing right here is we are finding arc length. You'll see why we are finding it in the explanation. So arc length is making an angle phi inside the circular loop, that is in xy axis, and the radius of the circular loop is r. And the angle also you can easily see कि we have angle theta representation also. Now this horizontal components cancel symmetry is shown, like how we'll see. So we have taken like four elements from different points on the circular loop, and we can clearly see that each element we are taking have an equal and opposite element. Those for those whose horizontal electric field directions are equal and opposite and are actually cancelling each other. So we are seeing this in the x direction as x axis. So what we are seeing is key we have taken an element from the left side and from the right side respectively, and their horizontal electric field are equal and opposite, so which shows that they are equal and opposite, and that cancels each other because of the symmetries. Similarly, this we are seeing in the y direction, and we can clearly see they are opposite, equal and opposite. So what we see is the horizontal component of the electric field will not exist because it will be having equals to 0 because of the presence of symmetry in the circular loop, because there will always be an element which will be having equal and opposite electric field to the other element of the circular loop. Now this is so we can take as many as elements we want from this, and we can see that they have an another part which will cancel it. Now we are seeing the vertical component. So what we see is what is happening is we have taken four elements, and what we are seeing is the vertical components are all combined in the z direction, which shows that the resultant electric field will be in the z direction. And this animation will show you it on the x-axis and the y-axis representation. So what I'm showing is कि there were two points which I would have taken for finding electric field. So what we are seeing is the vertical component is lying on the z direction. So like this, every element on which is represented by small cylinders on the circular loop will have a vertical component of electric field. They all will be in the z direction. Number 2.5 of Griffith, we have to find electric field at a distance z, which is about the center of a circular loop of radius r, and that carries a uniform charge
line charge, that is lambda. So what we already know from the animation also, and I'm also mentioning it here also. So from the center of the loop, I have to find electric field at this sphere, which is z distance apart. This is on the z axis. That's why इसकी जो हमारी जो positions हैं वो ये है 0 0 z. And the next thing is कि ये जो हमारा जो circle है इसका radius है r, which is already given. And हमें ये पता है कि जो हमें ये क्या given है. Let's write कि हमें क्या given है. हमें given है कि इसका यूनिफॉर्म लाइन चार्ज है लैम्डा. यूनिफॉर्म लाइन चार्जेस लैम्डा. सो व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन आवर एनिमेशन की जो हमारा सर्कल होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स. स्मॉल एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स होंगे जिससे पूरा सर्कल बना है. अगर मैं किसी एक पॉइंट पर डी क्यू निकाल कर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ, जो हमारा पॉइंट है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट लेट्स से कि ये पॉइंट हमारा पी है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं आराम से अपना इंटीग्रेट करूँगी उस पूरे इनफाइनाइटली स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को. अगर मैं होल सर्कल के लिए इंटीग्रेट करूँगी तो मैं निकाल पाऊँगी कि पूरे सर्कल की वजह से पी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है. तो लेट्स डू इट इन दैट फॉर्म, ईजी रहेगा, एंड दैट्स द बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो नाउ let what we have done as a geometrical thing, we have done that कि जो z और जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा है. that is shown in the diagram also कि that this thing, this is theta, this angle is theta, जो कि हमारा मिड ओरिजिन से p पॉइंट पर जो बन रहा है जो पोजीशन वेक्टर है, और जो हमारा वेक्टर है, मान लो कि मैंने ये एलिमेंट लिया है जहाँ पर मैं निकालना चाहती हूँ डी क्यू. ओके, यहाँ पर मैं डी क्यू निकालना चाहती हूँ, तो उसका जो पी पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर. ओके, सो व्हाट वी नो इज कि हम सबसे पहले लिखते हैं हमारी जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, ई आर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई आर आई स्क्वायर आर आई कैप, एंड दीज आर पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर है ये. पोजीशन वेक्टर कौन सा, r1 माइनस r2 का पोजीशन वेक्टर है, दैट इज इक्वल्स टू r. और ये r2 जो है ये सोर्स है, जो चार्ज है उसका सोर्स, और ये जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ओके फाइन. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट. तो उसमें क्या होगा, उसमें हम निकालेंगे वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स डिनोट इट विद डी. डी से हम उसे डिनोट कर रहे हैं, तो ये होगा 1/4πε0. तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं ना. अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या है, ये पॉइंट जहाँ पर हमें ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये स्मॉल पॉइंट है, और यहाँ से पी पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर. तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड आर कैप. सो लेट्स डू कि हम सबसे पहले डी क्यू निकालते हैं, क्योंकि हम ये निकालेंगे तभी तो हम ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे ना. तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट डी क्यू. डी क्यू निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. अब ये जो मेरा सर्कल है, मैं मान लेती हूँ, मानना क्या है, ये जो मेरा सर्कल है, आई विल शो यू विद दिस पेन कि ये जो सर्कल है इसमें ये मेरा एलिमेंट है. ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है जिसको मैं डी क्यू मान रही हूँ. मैंने इसको डी क्यू माना है, एंड ये एलिमेंट का ये क्या है पता है हमें, रेडियस है ये सर्कल का. ये क्या है, ये भी रेडियस है सर्कल का. और ये क्या होगा, ये छोटे आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आप पता होगा बहुत सबको कि आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं. दिस आर्क की लेंथ कैसे आएगी, तो ये सिंपली आर्क की लेंथ आती है r बाय फाई से. तो यहाँ पर हम क्योंकि छोटा ही एंगल ले रहे हैं फाई को, तो ये डी फाई है. सो r डी फाई इज इक्वल्स टू डी एस. राइट, कि ये जो हमारा r इंटू डी फाई है वो डी एस होगा. और वो है क्या, वैसे आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला है. होता क्या है कि देखो, ये है हमारा r, ये है फाई. जब ये r की लेंथ ये इस एंगल से यहाँ तक आएगी, डी फाई है ये, तो ये क्या बना रही है, ये आर्क बना रही है. इस आर्क की लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है. ये क्या, डी एस आएगा.
अब ये हमने क्यों निकाला है, अभी दिखाती हूँ हमने क्यों निकाला है। तो डी क्यू के लिए हमें बस एक चीज़ गिवन है कि हमारे पास लेमडा है जो कि है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब जो एक यूनिट का जो चार्ज है इस पूरे सर्कल की लेंथ में, दैट इज लेमडा। तो अगर मुझे फुल चार्ज निकालना है, मतलब अगर मुझे डी क्यू चाहिए, और मैंने एलिमेंट अपना ये वाला लिया है इस वाले डायग्राम में, ये डी एस वाला एलिमेंट लिया है मैंने, तो व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट कि मेरा डी क्यू क्या होगा, मतलब मेरे इस वाले जो मैंने जो लिया है इसमें मेरा चार्ज क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो लेमडा बाई डी एस होगा। अगर नहीं समझ आए तो आई एक्सप्लेन इट हेयर कि मैंने ये सर्कल लिया, मैंने इसमें छोटे से छोटी यूनिट का जो चार्ज है वो लेमडा है, फुल का तो अगर मुझे इतने पार्ट का लेना है जो कि मेरा डी एस पार्ट है, जो कि हमने अभी निकाला कि ये आर्क लेंथ क्या है, डी एस है, तो अगर मुझे सिर्फ इस पार्ट का चाहिए कि कितना चार्ज है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मेरा डी क्यू आ गया मेरे पास। और हमें क्या चाहिए, हमें आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। अब देखो ये है हमारा 90 डिग्री का ट्रायंगल, दिस इज आर 90 डिग्रीज ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू होगी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने किस में देखी है, ये हमने इसमें भी देखी है, एनिमेशन में भी देख ली कि आर आर स्क्वायर कैसे है, और ये हम अभी यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये वाला 90 डिग्री एंगल बनेगा, और ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसका ये आएगा। अब आती है जो हमें चाहिए, अब हमारे पास जो जो चाहिए था हमें इस इक्वेशन में रखना था ना, सब कुछ इस इक्वेशन में रखना था, और हमारे पास डी क्यू आ चुका है, हमारे पास आर स्क्वायर आ चुका है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास ये भी हो, दैट इज डायरेक्शन ऑफ आर। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ आर यूजिंग दीज। सो ये हमने एनिमेशन में भी देखी है, तो मैं बस एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, कंपोनेंट व्हाट आई एम शोइंग इज कि मान लो ये वाली पिक्चर देखते हैं सबसे पहले। मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ से, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली मैंने, और मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ से, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे बनेगी ना, ठीक, पोजीशन वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगेगी, तो मैंने बना लिया अपनी पोजीशन वेक्टर। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को तोड़ूंगी, सो दिस विल बी माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो यहाँ पर आएगा ई एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी आएगा जो ई एक्स डायरेक्शन का जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, इन दोनों की वजह से। अब हो क्या रहा है कि ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक्स कंपोनेंट की, इस वाले एलिमेंट की, दिस राइट साइड एलिमेंट की, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड जो दूसरी जो ये लेफ्ट साइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है, दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या है कि ये पूरा सर्कल एक सिमेट्रिकल है, तो होगा क्या कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगी वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जैसे कि ये तो मैंने आपको एक एक्सिस में दिखाया, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अब ये है, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाई एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में भी मान लो कोई ये एलिमेंट है, ये कोई ये एलिमेंट है, और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, मैं फिर से इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ूंगी, तो व्हाट आई विल फाइंड कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बिल्कुल इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो उससे क्या मिलता है, कंक्लूजन क्या होता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई एक्स है, दैट डोंट एग्जिस्ट, मतलब वो जीरो है, वो क्योंकि वो सबको कैंसिल कर रहे हैं। और रीजन क्या है, क्योंकि सिमेट्री है, सिमेट्री होने की वजह से यहाँ पर हमारी एक्स डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि वो सब अपोजिट डायरेक्शन में होके एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, जो कि हमने एनिमेशन में भी देख लिया। अब तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए बचता है सिर्फ जेड कंपोनेंट। जेड कंपोनेंट क्यों, क्योंकि जो जेड कंपोनेंट है जो हमने देखा, हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सिर्फ वही बचेगा। जैसे ये डायग्राम में देखते हैं हम, इस डायग्राम में ये वाला जो सर्कल का पार्ट है, ये एलिमेंट हमने लिया है, ये दोनों एलिमेंट का जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन जेड डायरेक्शन, वो जेड डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली अगर हम उन सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, तो वो जेड डायरेक्शन में होगी।
तो ये है हमारा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस की फोटो, और ये वाई एक्सिस पे। तो मैंने 2 एलिमेंट से दिखाया है। ऐसे ही कितने सारे एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सिर्फ वही आ रही है। हो गया। तो सिंपली हमें आर की डायरेक्शन मिल चुकी है, तो हम वहीं पर चलते हैं। ओके, तो हमें क्या मिल गया है कि हमारा जो आर कैप की वैल्यू है दैट इज जेड। ओके, सो डायरेक्शन आ चुकी है हमारे पास, ई जेड है मतलब वो। अब कंपोनेंट तोड़ लिया है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ई जेड डायरेक्शन, जो जेड की डायरेक्शन में, वहाँ पे ई जेड की वैल्यू क्या बन रही है। तो ये थीटा है, और आई शो यू इट विद द ग्रे पेन, कि ये वाला जो एंगल है थीटा है। हमने देखा कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ये हमारी डी ई है, और ये जो हमारी डी ई एक्स होता वो कैंसिल हो गया इसकी यहाँ पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री की वजह से। बचा हमारे पास डी ई जेड। तो व्हाट विल बी डी ई जेड, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो अगर मुझे, तो हमारी डी जेड जो हमारी डी ई है वो एक्चुअल में है कि डी जेड है कि एक्चुअल में वो है हमारी डी ई कॉस थीटा। अब वी नो व्हाट कॉस थीटा इज। कॉस थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा आर, सिंपल, रेडियस ऑफ द सर्कल। नहीं, बेस हमारा जेड है ना, जो एंगल के सामने होता है दैट इज परपेंडिकुलर। सो हमारा बेस इज जेड एंड हमारा हाइपोटेनस तो आर है, एंड दैट जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो हमारा जो आर है वो एक है क्या, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो नाउ we have DE cos theta. सो जो जो हमारे पास वैल्यू थी हम सब लिख लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्या आया हमारा, डी क्यू क्या आया था हमारा, डी क्यू आया था हमारा लेमडा डी एस है हमारा। डी एस हमारा निकलेगा आर डी फाई से। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम डी एस नहीं निकाल पाएंगे तो हमारे पास आर कांस्टेंट होगा, हमारे पास एंगल है, हमें पता है एंगल क्या है, तो हम निकाल सकते हैं ना, दैट्स वाई। तो लेमडा डी एस हमारा डी क्यू है, और ये डी क्यू, इसके बाद हमारा जो आर स्क्वायर है दैट इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड हमारी जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या था हमारा, दैट इज जेड अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर होता है ना। सो व्हाट वी गॉट इज, this is 1 by 4 pi epsilon naught, and this is lambda r d phi, and this हो ऊपर और क्या बच रहा है हमारे पास, we have z, and also नीचे क्या है हमारे पास r square plus z square की power 3/2. this is in z direction, this is de। तो अब हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, मतलब एक साथ कर देती हूँ मैं। अगर e निकालना चाहती हूँ तो आई हैव टू इंटीग्रेट डी ई। तो इंटीग्रेशन करते हैं। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, नीचे की वैल्यू कांस्टेंट है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ आएगा डी फाई, एंड दिस इज आर डायरेक्शन डी फाई। अब डी फाई क्या था, हमने देखा था कि ये जो हमारा सर्कल है इसका ये छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, दिस इज डी एस, दिस इज आर, दिस इज आर, एंड दिस इज डी फाई। तो डी फाई का इंटीग्रेशन मतलब है कि मैं इस पूरे के लिए इसे इंटीग्रेट करूंगी,
तो दिस विल बी फ्रॉम 0 टू 2 पाई। क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं 0 लूंगी देन दिस विल रिलाई ऑन दिस, सिर्फ इतना पॉइंट बनेगा जब मैं 0 लूंगी, ठीक है। फिर जैसे ही जैसे एंगल बढ़ता रहेगा दिस सर्कल विल बी कंप्लीटेड, और जब 2 पाई की वैल्यू आएगी तो दिस सर्कल विल कंप्लीटली बिकम, ये टोटल कितना हो गया, 2 पाई। समझ गए सर्कल की फॉर्मेशन कैसे होगी? द इंटीग्रेशन का ये मतलब है यहाँ पर। तो 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही सिंपल है। ये क्या होगा, ये होगा हमारा सिंपल 2 पाई माइनस 0, एंड दिस इज, क्योंकि डी फाई का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, लिमिट रख देंगे 2 पाई टू 0, और ये ए होगी क्या, 2 पाई माइनस 0, एंड दैट इज 2 पाई। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं अपनी इक्वेशन में। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट lambda r z 2 पाई, वी कैन यहाँ ही लिख देते हैं 2 पाई बाय r² प्लस z² 3/2। ओके, अगर हमें इससे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।